Now today we will start with order 23. It is very important that you should know about it. So the first rule talks about withdrawal of the suit or abandonment of the part of the claim. Okay? So it says at any time after the institution of the suit, the plaintiff may, against all or any of the defendants, abandon his suit or abandon part of his claim. यहाँ पे abandonment की बात है, ठीक है. सब रूल 1 में abandonment की बात है, तो ये जरा मार्क कर लीजिएगा. और एक बात का ध्यान रखिए, आप कोई भी सूट या पार्ट ऑफ द क्लेम अबैंडन कर सकते हैं इवन इन अपील एज वेल. ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रायल के दौरान ही नहीं, आप अपेलेंट स्टेज पे भी कर सकते हैं उसे अबैंडन. ठीक. अब प्रोवाइजो दिया गया है, वो माइनर्स के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है. वो कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ इज अ माइनर or other person to whom the provisions contained in rules 1 to 14 of order 32 extends, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court. बिना कोर्ट की लीव के, या इन अदर वर्ड्स बिना कोर्ट की परमिशन के वो सूट अबैंडन नहीं किया जाएगा जहाँ पे प्लेंटिफ इज अ माइनर या ही इज अ ल्यूनेटिक या द पर्सन ऑन whom order 32 applies. Now sub rule 2 reads, an application for leave under the proviso to sub rule 1 shall be accompanied by an affidavit of the next friend, and also if the minor or such other person is represented by pleader by a certificate of the pleader to the effect that the abandonment proposed is in his opinion for the benefit of the minor or such other person. तो सब रूल 2 बेसिकली उस प्रोवाइजो के कंटेक्स्ट में वो बताता है कि जब नेक्स्ट फ्रेंड को अबैंडनमेंट करना है सूट का और नेक्स्ट फ्रेंड के ओपिनियन में अबैंडनमेंट इज नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, तो किस प्रोसीजर से कंप्लाई करना होगा ये वो बताता है. तो ये आपको दो चीज़ें कहता है कि पहला, जब आप एप्लीकेशन देंगे ऐसी परमिशन के लिए तो द नेक्स्ट फ्रेंड शुड हैव एन एफिडेविट, वो भी उसी के साथ फाइल किया जाएगा जिसमें वो बताएगा कि द abandonment proposed is in his opinion for the benefit of the minor, और एक प्लीडर का सर्टिफिकेट भी साथ में होगा टू द सेम इफेक्ट. प्लीडर का सर्टिफिकेट भी यही बताएगा कि जो अबैंडनमेंट जो प्रपोज्ड है इट इज इन द फेवर ऑफ द माइनर और इन द बेनिफिट ऑफ द माइनर. अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जस्ट टू चेक योर कंसेप्ट एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आप बताइए यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड का मेंशन है पर गार्डियन ऑफ द माइनर का मेंशन क्यों नहीं है? ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, और आपको जैसा सही लगे जरा आंसर करिएगा मुझे. नाउ वी गो टू सब रूल 3. It says where the court is satisfied that the suit must fail by the reason of some formal defect, mark the words formal defect, or B, that there are sufficient grounds, mark the word sufficient grounds, for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of a suit or part of a claim, it may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim with the liberty to institute a fresh suit in respect of the subject matter of the suit or such part of the claim. अब यहाँ पे विड्रॉल की बात हुई है. रूल सब रूल 3 में ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 23 यहाँ पे विड्रॉल की बात की गई है. ठीक है, तो आपको सब रूल 3 में विड्रॉल मिलता है और सब रूल 1 में अबैंडनमेंट मिलता है. इस बात को लेके बहुत क्लियर रहिएगा. नाउ वी कम टू सब रूल 4. अब ये इंपॉर्टेंट बात बताता है. ये बताता है कि वेयर द प्लेंटिफ अबैंडन्स एनी सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम अंडर सब रूल 1 or withdraws from the suit or part of the claim without the permission of the court, then he shall be liable for such cost as the court may award and be precluded from instituting a fresh suit in respect of the such subject matter or such part of the claim. So basically sub rule 4 says that if you withdraw without the permission or abandon the suit or part of the claim, then you cannot institute a fresh suit on the same cause of action. So this talks about bar to the suit. So mark this, it is very important for you to remember. So sub rule 4 is the bar clause.
Now we come finally to subrule 5. It says, nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of several plaintiffs to abandon a suit or part of the claim under subrule 1 or to withdraw under subrule 3 any suit or part of the claim without the consent of other plaintiff. ये उन सिचुएशंस के लिए है कि जब एक से ज़्यादा प्लेंटिफ होते हैं एक सूट में और इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ ऐसा है कि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जो कोर्ट है उससे प्लेंटिफ को परमिशन लेनी पड़ेगी इफ वन ऑफ सच प्लेंटिव्स वांट टू अबैंडन द सूट और विड्रॉ द सूट और पार्ट ऑफ अ क्लेम एज द केस में बी. अब मैं आपको कंसेप्चुअल बातें बताता हूं. ठीक है, जब सेक्शन की रीडिंग हो गई, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द कंसेप्चुअल पार्ट. सो रूल 1 ऑफ ऑर्डर 23 इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इन वाइटो बेनिफिकम नॉन डेटर. इसका मतलब होता है द लॉ कन्फर्स अपॉन अ मैन नो राइट्स और बेनिफिट्स विच ही डज नॉट डिजायर. अगर आपको वो राइट्स और बेनिफिट्स चाहिए ही नहीं तो लॉ विल नॉट कन्फर दोज राइट्स एंड बेनिफिट्स अपॉन यू. ठीक है, ये मैक्सिम है. तो जैसा कि आप देखते हैं कि अबैंडनमेंट जिस तरीके से हो रहा है, विड्रॉल जिस तरीके से हो रहा है, और ये जो ऑप्शन दिया गया है प्लेंटिफ को, ये इसी मैक्सिम पे बेस्ड है. और एक और पॉइंट होता है कि प्लेंटिफ डोमिनस लिटिस होता है, मास्टर ऑफ द सूट. तो अगर वो मास्टर ऑफ द सूट है तो वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है, अबैंडन भी कर सकता है. पर प्रॉपरली ये जो मैक्सिम बेस्ड है ये इन वाइटो बेनिफिकम नॉन डेटर पे बेस्ड है. अब ये तो बात ठीक है कि द प्लेंटिफ कैन विड्रॉ और अबैंडन हिज सूट, लेकिन आफ्टर सच अबैंडनमेंट और विड्रॉल will he be at the liberty to file a fresh suit? The answer is not quite. अगर बिना परमिशन के विड्रॉल किया है तो your suit would be barred. और अगर आपने सूट अबैंडन कर दिया है then you cannot institute a fresh suit on the same cause of action. तो अबैंडनमेंट एक अलग चीज होती है, विड्रॉल एक अलग चीज होती है. विड्रॉल का मतलब होता है वापस लेना, ठीक है, और अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना. तो अगर कोई अबैंडन कर देता है सूट को या अपने क्लेम को, तो ही इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर और पार्ट ऑफ द क्लेम. पर विड्रॉल के केस में एक सिचुएशन ये है कि विड्रॉल जो है अगर बिना कोर्ट की परमिशन के किया गया है तभी इट वुड एक्ट एज अ बार टू द सूट. ठीक. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ विड्रॉल. Absolute withdrawal, that is withdrawal without the leave of the court, and qualified withdrawal, that is withdrawal with the leave of the court. Now, so far as absolute withdrawal is concerned, you can withdraw the suit anytime you want, because as a plaintiff you are the dominus litis, and the maxim of in vitico beneficum non datur also applies if you as a plaintiff desire to absolutely withdraw the suit. In this situation, court cannot refuse you the permission to withdraw the suit and compel the plaintiff to proceed with the suit. So if you as a plaintiff wants to withdraw absolutely, then you can. You may proceed with it. It's your right. But there would be consequence for the exercise of that right. And what would be the consequence? The consequence would be that you would be precluded from bringing the same suit again. There's a bar clause in subrule 4. ठीक है, you cannot bring the same suit in respect of the same subject matter. तो bar clause under subrule 4 apply कर जाएगा if you exercise your absolute withdrawal powers. But as far as qualified withdrawal is concerned, qualified withdrawal can be granted under the conditions that are laid down in subrule 3 of rule 1 of order 23. In that situation, you can bring the same suit again. That permission would be granted to you. आप अक्सर देखते होंगे that whenever the withdrawal application is given, कोर्ट अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है कि the petitioners or the plaintiffs are given the permission to withdraw the suit with the liberty to institute a fresh suit in respect of the same cause of action. वो लिख के रखता है. तो वहां पे उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया होता है. ठीक है, वहां पे क्वालिफाइड विड्रॉल की बात है. तो क्वालिफाइड विड्रॉल किन सिचुएशंस में होगा?
वो सब रूल 3 बताता है। तो उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। जो पहला कीवर्ड है वो है फॉर्मल डिफेक्ट। अच्छा, फॉर्मल डिफेक्ट क्या है? इट कॉनोट सम डिफेक्ट ऑफ प्रोसीजर और फॉर्म। ठीक है, इट हैज नो रिलेशन टू द मेरिट्स ऑफ द केस, इट रिलेट्स टू डिफेक्ट और फॉर्म। ठीक है, इट रिलेट्स टू डिफेक्ट ऑफ सम प्रोसीजरल डिफेक्ट और फॉर्मल डिफेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लेट अस सपोज द प्रॉपर कोर्ट फी हैज नॉट बीन पेड। ठीक, proper stamp fee has not been paid, suit has not been properly valued, absence of territorial jurisdiction, defect in the prayer clause, want of statutory notice under section 80 of CPC if the suit is against the government, there is multifariousness of the suit, that is misjoinder of the parties and cause of action. तो ये सब क्या है? ये फॉर्मल डिफेक्ट हैं. These are the defects of form or procedure. They have no relation to the merits of the case. अब कौन से डिफेक्ट ऐसे होते हैं which affect the merit of the case? एक बात याद रखिएगा, if the defect affects the merit of the case or goes to the root of the plaintiff's case, then that cannot be said to be a formal defect. उसका illustration क्या है? Non-joinder of a necessary party, omission to substitute heirs, omission to include all the causes of action in the plaint, non-registration of a partnership form, bar of limitation, deliberate undervaluation of the subject matter of the suit, addition of a new factual plea, failure to bring the legal representatives on record, non-examination of material witness, insufficiency of evidence, filing of representative suit without following the procedure prescribed under Order 1 Rule 8, etc. These are the defects which affect the merits of the case and they go to the root of the plaintiff's case. They cannot be said to be a formal defect. ठीक है? अब रूल 3 में जो सेकेंड कीवर्ड्स हैं जो क्लॉज बी में है वो है that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter or a suit or part of the claim. So how do we construe the expression sufficient grounds? कैसे इंटरप्रेट करना है हमें ये expression? तो पहले एक चीज याद रखिएगा कि एक wide and liberal meaning should be given to the expression sufficient grounds by exercising your power of interpretation in the interest of justice ex debito justitiae. आप एक और बात याद रखिएगा कि यू डू नॉट हैव टू कंस्ट्रू द एक्सप्रेशन सफिशिएंट ग्राउंड्स इजस्डम जनरस विद द एक्सप्रेशन फॉर्मल डिफेक्ट. ठीक है, इजस्डम जनरस इसको कंस्ट्रू नहीं करना है विद द एक्सप्रेशन फॉर्मल डिफेक्ट. अब क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती है, तो एज अ वे ऑफ इलस्ट्रेशन कुछ चीजें बताता हूं. जैसे मान लीजिए द सूट इज बिकम इनफ्रंक्टुअस, या सूट इज प्रीमेच्योर, या प्लेंटिफ को लगता है कि अगर डिक्री पास भी हो गई सूट में तब भी डिफेंडेंट के खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, या प्लेंटिफ ने गलती से 2 सूट फाइल कर दिए हैं, या पावर ऑफ अटर्नी फाइल करना भूल ही गया है, एसेट्रा. ये सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं जो सफिशिएंट ग्राउंड्स में कवर होंगे. ठीक है, तो ऐसे में कोर्ट कह सकता है कि ओके मिस्टर प्लेंटिफ, वी आर अलाउइंग यू टू विड्रॉ योर सूट विद द परमिशन टू फाइल द फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन और ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन सफिशिएंट ग्राउंड्स. अब रूल 1 में बेसिक लेवल पे आपको इतनी ही चीजों को लेके अवेयर रहना है. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि कुछ इश्यूज डिसाइड हो चुके हैं और फिर बीच में प्लेंटिफ अप्लाई करता है फॉर द विड्रॉल ऑफ द सूट कि मैं सूट विड्रॉ करना चाहता हूं. तो एक सिचुएशन ये आती है कि जो इशू डिसाइड हो चुके हैं उन इशू के कंटेक्स्ट में क्या रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा? The answer is no, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. एक बार सूट विड्रॉ हो गया तो इट विल हैव एन इफेक्ट दैट इट विल रिस्टोर द प्लेंटिफ टू द पोजीशन in which he would have occupied had he not brought the suit at all. वो वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा या he'll be relegated to that position
where he would have been had he not brought the suit at all. ठीक है, तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा एक बार सूट विड्रॉ हो गया. सब रूल 5 के कंटेक्स्ट में एक छोटा सा नुआंस बता देता हूं कि अगर प्लेंटिफ का अपना इंटरेस्ट है तो वो अपने इंटरेस्ट के एक्सटेंट तक जो सूट है वो अबैंडन और विड्रॉ कर सकता है, वहां पे उसे कंसेंट की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बाकी प्लेंटिफ के साथ तो उसे कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं जरा रूल 1A पे. ये टॉक करता है अबाउट द पोजीशन ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स एज प्लेंटिव्स एंड व्हेन इट मे बी परमिटेड. सो इट टेल्स यू कि कब ट्रांसपोजिशन of defendant as plaintiffs may be permitted. So what is transposition of parties? पहले मैं ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज के एक्सप्रेशन की बात करता हूं. प्लेंटिफ एक सूट में अगर बाद में डिफेंडेंट बन जाता है उसी सूट के दौरान, मान लीजिए ही वाज अंडर अ रॉन्ग इंप्रेशन एंड इट टर्न्स आउट दैट ही हैज टू बिकम अ डिफेंडेंट, तो जब प्लेंटिफ अपनी पोजीशन चेंज करके डिफेंडेंट बन जाता है और डिफेंडेंट अपनी पोजीशन चेंज करके प्लेंटिफ बन जाता है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द पार्टीज. ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द पार्टीज. दो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोजिशन, पोजीशन का एक्सचेंज, अदला बदली. ठीक है, ये अदला बदली वाला एक्सप्रेशन तो थोड़ा लूज एक्सप्रेशन है लेकिन मैं आपको सिंपल करने के लिए बोल रहा हूं. तो ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज आप समझ गए होंगे, फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड. रूल 1A ट्रांसपोजिशन किस कंटेक्स्ट में बात करता है, ट्रांसपोजिशन के किस कंटेक्स्ट में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स एज प्लेंटिफ. ठीक है, ये प्लेंटिफ एज डिफेंडेंट की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स एज प्लेंटिव्स उस सिचुएशन में जहां पे प्लेंटिफ ने अपना सूट विड्रॉ कर लिया है या अबैंडन कर लिया है. आप खुद सोचिए, अगर किसी सिचुएशन में प्लेंटिफ ने अपना सूट विड्रॉ कर दिया या अबैंडन कर दिया और एक डिफेंडेंट को लगता है, मान लीजिए को डिफेंडेंट्स हैं दूसरी साइड पे, ठीक है, बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, 4 डिफेंडेंट हैं, उनमें से एक डिफेंडेंट को लगता है कि मेरा एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है दैट हैज टू बी डिसाइडेड अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट्स एज वेल. तो वो तो कहेगा कि प्लेंटिफ अगर सूट अबैंडन और विड्रॉ कर देगा तो मेरे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या, मेरे सब्सटेंशियल क्वेश्चन का क्या, तो वो अप्लाई कर सकता है ऑर्डर 1 रूल 10 में टू बी ट्रांसपोज्ड एज व्हाट, टू बी ट्रांसपोज्ड एज प्लेंटिफ. एप्लीकेशन जो फाइल होती है वो ऑर्डर 1 के रूल 10 में होगी. रूल 1A ऑफ ऑर्डर 23 क्या बताता है आपको? वो बताता है कि परमिशन कब मिलेगी. ये बस छोटी सी बात ये करता है कि जब प्लेंटिफ ने अपना सूट विड्रॉ या अबैंडन कर दिया है और डिफेंडेंट अप्लाई करता है टू बी ट्रांसपोज्ड एज अ प्लेंटिफ, क्योंकि उसका सब्सटेंशियल क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड है, तो जब वो अप्लाई करेगा ऑर्डर 1 के रूल 10 में, तो कोर्ट shall, in considering such application, have due regard to the question that whether the applicant has a substantial question to be decided against any other defendant. ये कौन कौन सी सिचुएशन में आ सकता है? इलस्ट्रेटिवली बता देता हूँ, सक्सेशन मैटर्स में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, पार्टीशन मैटर्स में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और हर उस मैटर में आ सकती है जहां पे को इंटरेस्ट का, जहां पे को डिफेंडेंट का अपना इंटरेस्ट है एज अगेंस्ट दी अदर डिफेंडेंट्स एंड द प्लेंटिफ एज वेल. तो अगर प्लेंटिफ विड्रॉ कर देता है अपना सूट तो भाई प्लेंटिफ रहेगा नहीं, तो सूट डिसमिस हो जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन में अगर डिफेंडेंट को लगता है कि भाई मेरा भी कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है अगेंस्ट द अदर को डिफेंडेंट्स, तो आई शुड नाउ बी ट्रांसपोज्ड इन द पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ. और पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ में फिर वो वही काम करेगा जो एक प्लेंटिफ करता. ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट के लिए प्रोसिक्यूट करेगा और बाकी को डिफेंडेंट्स अपना इशू डिफेंड करेंगे. ठीक है, तो रूल 1 ने बस एक छोटी सी बात ये करता है कि आपको फोकस करना है द सब्सटेंशियल क्वेश्चन दैट हैज टू बी डिसाइडेड. अगर ये आपको पता है कि यस दैट डिफेंडेंट हु इज आस्किंग फॉर टू बी ट्रांसपोज्ड एज अ प्लेंटिफ, डज ही हैव एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड अगेंस्ट एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स और नॉट? इफ द आंसर इज यस, यू ग्रांट हिम परमिशन. ठीक है, इसमें इतनी सी बात की गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. अब रूल 2 कहता है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय द फर्स्ट सूट. इट सेज इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड
on the permission granted under the last preceding rule, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit has not been instituted. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और इट इज फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर आपने सूट विड्रॉ कर लिया तो आप वापस उसी पोजीशन में चले जाते हैं एज इफ यू हैव नॉट फाइल्ड द सूट एट ऑल. तो लिमिटेशन विल कंटिन्यू टू रन. अब मान लीजिए जो सूट का लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल का है. प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया 2 साल के बाद. ठीक, सूट चला 8 महीने. 8 महीने के बाद उसने विड्रॉल एप्लीकेशन दी विद द परमिशन टू फाइल द सेम सूट अगेन. कोर्ट ने उस विड्रॉल एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया, क्वालिफाइड विड्रॉल एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया विद द परमिशन टू फाइल द फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन और ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर. अब इस विड्रॉल के बाद 6 महीने के बाद प्लेंटिफ फिर से सूट फाइल करता है. ठीक है, फिर से इंस्टीट्यूट करता है. तो 2 साल के बाद उसने ओरिजिनल सूट फाइल किया था तो लिमिटेशन में से 2 साल चले गए. फिर 8 महीने तक सूट चला था. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने विड्रॉल एप्लीकेशन दी थी और विड्रॉल अलाउ हुआ था. तो 8 महीने भी उसमें ऐड कर लीजिए और फिर इसके 6 महीने बाद इन्होंने सूट इंस्टीट्यूट किया तो लिमिटेशन इनका एक्सपायर कर जाएगा. इनका लिमिटेशन एक्सपायर कर जाएगा. हिज नेक्स्ट सूट दैट ही हैज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द स्पैन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, यहां पे हिज सूट वुड बी हिट बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन. तो ही कैन नॉट इंस्टीट्यूट द फ्रेश सूट अगेन, क्योंकि रूल 2 आपको एक्सप्रेसली बता रहा है कि जो भी फ्रेश सूट होगा और परमिशन टू विड्रॉ अगर दे दी गई है तो प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैज नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड. लॉ की नजर में ऐसा होगा जैसे कि पहला सूट इंस्टीट्यूट किया ही ना गया हो. ठीक है, सो इट इज फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड. अब एक सिचुएशन होती है कि क्या विड्रॉल अपीलेट स्टेज पे भी हो सकता है या नहीं. द आंसर इज यस. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. देखिए, अपील इज कंस्ट्रूड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट. अपील को माना जाता है इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट. तो दिस पावर ऑफ विड्रॉल वुड एक्सटेंड टू दैट लेवल एज वेल. आप अपीलेट स्टेज पे भी विड्रॉल के लिए प्रे कर सकते हैं. इस पे एक बहुत अच्छा सा केस है, विजयनंद पटनायक वर्सेस शत्रुघ्न साहू, डिसाइडेड ऑन 26 मार्च 1963. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर रेफरिंग टू सेवरल हाई कोर्ट जजमेंट्स एंड अप्रूविंग द करेक्ट पोजीशन said that there can be no doubt that the appellant has a right to withdraw his appeal unconditionally, and if he makes such an application to the court has to grant it. The difficulty will only arise out of any cross objection under which the respondent might have acquired any interest, but barring those situations, the appellant has a right to withdraw his appeal unconditionally if he makes such an application to the court. तो जहाँ पे भी रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ के, या जहाँ पे रिस्पोंडेंट ने क्रॉस ऑब्जेक्शंस नहीं फाइल किए हैं, उन सिचुएशंस को छोड़ के, अगर मान लीजिए अपैलेंट ने क्या कहते हैं एप्लीकेशन फाइल किए टू विड्रॉ हिज अपील, देन द अपैलेट कोर्ट मस्ट परमिट द अपैलेंट टू विड्रॉ हिज अपील. ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि नो आई विल गो ऑन हियरिंग द अपील. Supreme Court also pointed out that when the High Court is hearing an appeal from an original decree and an application is made to withdraw the appeal unconditionally, it must permit such withdrawal subject to cost and has no power to say that it will not permit the appeal to be withdrawn and will go on hearing the appeal. तो यहाँ पे अनकंडीशनल विड्रॉल की बात हो रही है, अनकंडीशनल विड्रॉल. तो इस स्टेज पे भी अनकंडीशनल विड्रॉल अलाउड है, अपैलेट स्टेज पे भी अलाउड है. ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट था, यही बताना था आपको. अब एक चीज याद रखिएगा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर 23 वुड आल्सो अप्लाई टू रिट पिटिशंस. ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली नहीं लगता पर इसके प्रिंसिपल्स लगाए जाएंगे रिट पिटिशंस पे. ध्यान रखिएगा, सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू रिट पिटिशंस. तो जनरली द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देते हैं पिटिशनर को टू विड्रॉ हिज पिटिशन, बट अगर वो विड्रॉल अनकंडीशनल है तो हो सकता है कि आप री इंट्रोड्यूस ना कर पाए सेम चीज. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ हीबियस कॉर्पस पिटिशन. लेकिन उनके अलावा यूजुअली जब आप विड्रॉल के लिए प्रे कर रहे होते हैं देन यू हैव टू गेट
this statement recorded that the petitioner is given liberty to file a fresh suit in respect of the same cause of action. ये expression recorded होना चाहिए, ठीक है. लेकिन याद रखिएगा, अगर रिट पिटिशन इस बात पे विड्रॉ हो रहा है बिकॉज देयर हैज बीन ऑफिस ऑब्जेक्शंस या ऑब्जेक्शंस बाय रजिस्ट्री, या कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो गया है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गई है, या इस बात पे कि अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, तब फ्रेश पिटिशन बार नहीं होगा, ठीक है. तब फ्रेश पिटिशन बार नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे फॉर्मल डिफेक्ट है. मैंने आपको एक बात बताई कि जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे. याद रखिएगा, ऑर्डर 23 नहीं अप्लाई होता है, इसके जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं ऑन रिट पिटिशंस पे, ठीक है. ऑर्डर 23 नहीं अप्लाई होता है. कभी भी मत बोलिएगा कि रिट पिटिशंस पे ऑर्डर 23 अप्लाई होता है. इट डजंट. और ऑर्डर 23 कहाँ नहीं अप्लाई होता है? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में. व्हेनेवर एन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, वहाँ पे ऑर्डर 23 की एप्लीकेबिलिटी होती ही नहीं है. इसके लिए आप सीधे सीधे ऑर्डर 23 का रूल 4 रेफर कर सकते हैं. वो सीधे कहते हैं नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है. अब आपके लिए एक सवाल है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स में विड्रॉल या अबैंडनमेंट का क्या प्रोसीजर है? ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस सवाल से हम लोग ने डील किया था ऑर्डर 1 में ही, ठीक है. तो हिंट आपके लिए ये है कि इसका आंसर आपको ऑर्डर 1 में मिलेगा. लेट अस सी हु फाइंड्स इट फर्स्ट. अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जब मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट विड्रॉ कर लिया और प्लेंटिफ ने लेट अस सपोज कोई इंटरिम ऑर्डर ऑब्टेन किए थे या उसको कुछ बेनिफिट्स मिले थे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स. तो उन बेनिफिट्स का क्या? द प्लेंटिफ वुड हैव टू रिस्टोर दोज बेनिफिट्स बैक टू द डिफेंडेंट, ठीक है. क्या ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग permission to withdraw the suit is an appealable order or not? No, it is not an appealable order. क्यों नहीं है appealable order? Simply put, order 43 rule 1 में mention नहीं है इसका, hence it is not an appealable order. Hence in this situation a revision can be filed, ठीक है. revision can be filed. ये case decided की definition में आ जाएगा under section 115, तो revision ज़रूर फाइल हो सकता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, दैट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है अंडर ऑर्डर 23. अब पहले जरा हम प्रोविजन पढ़ते हैं. रूल 3 टॉक्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स. इट सेज वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द सूट हैज बीन एडजस्टेड wholly or in part by a lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties, or where the defendant satisfies the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit, the court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith so far as relates to the parties to the suit, whether or not it relates to the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject matter of the suit. तो यहाँ पे बस ये क्लैरिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज पार्टीज ने एंटर कर लिया है तो इट डजेंट मैटर वो कॉम्प्रोमाइज उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को लेके भी है और उसके अलावा भी और सब्जेक्ट मैटर्स को लेके है, ठीक है. तो अगर मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर देन द सूट इटसेल्फ, इवन देन अ कॉम्प्रोमाइज कैन बी डन, ठीक है. इसमें एक एक्सप्रेशन मार्क करिए, इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज, ठीक है. कॉम्प्रोमाइज बाय लॉफुल अग्रीमेंट और अदरवाइज शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी साइंड बाय द पार्टीज. अब जरा प्रोवाइजो पे आ जाते हैं. प्रोवाइजो कहता है कि वेयर इट इज अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर दैट एन एडजस्टमेंट और सेटिस्फैक्शन हैज बीन अराइव्ड एट, द कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन, but no adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question unless the court, for reasons to be recorded, think fit to grant such adjournment. Explanation: an agreement or compromise which is void or voidable under Indian Contract Act shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule. ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ सिंपली एक ऑलरेडी कॉमन सेंस वाली पोजीशन को ही बता रही है, तभी ये एक्सप्लेनेशन में ऐड किया गया है कि भाई कॉम्प्रोमाइज इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट लॉफुल होना चाहिए. इफ द एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक एसेट्रा,
तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल कम इन टू प्ले. अगर अग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज वॉइड या वॉइडेबल है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो रूल 3 के पर्पस के लिए इट शैल नॉट बी डीम टू बी अ लॉफुल कॉम्प्रोमाइज. वो कॉम्प्रोमाइज माना ही नहीं जाएगा. ठीक है, तो याद रखिएगा, इट शुड नॉट बी हिट बाय एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच डिक्लेयर एन एग्रीमेंट टू बी वॉइड और वॉइडेबल. तो अब आपको रूल 3 में ध्यान क्या रखने वाली बात है. देखिए, पहले एक चीज याद रखिएगा कि कॉम्प्रोमाइज शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज. ये मैंडेटरी है. दूसरा, द कोर्ट शैल ऑर्डर सच अग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड. तो एक बार जो कॉम्प्रोमाइज है आप जब कोर्ट में फाइल करते हैं तो कोर्ट भी उसे रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद इट इट शैल पास अ डिक्री. तो बेसिकली जो कोर्ट कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो पास करता है, जिसको हम लोग लॉ में टेक्निकली बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज डिक्री, इट इज नथिंग मोर देन द कोर्ट पुटिंग इट्स ऑफिशियल सील ऑन द लॉफुल कॉम्प्रोमाइज विच द पार्टीज हैज एंटर्ड इनटू. ठीक है भाई, सिंपल सी बात है. आप और मैं मान लीजिए सूट लड़ रहे हैं. ठीक है, आई एम द प्लेंटिफ, यू आर द डिफेंडेंट. अब हमने और आपने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है. उस कॉम्प्रोमाइज के अकॉर्डेंस में कोर्ट डिग्री पास कर देगा. तो ये बेसिकली एक अच्छा प्रोविजन है विच इंटेंड्स दैट एज फार एज पॉसिबल द पार्टीज मस्ट सेटल देयर डिस्प्यूट्स एमिकेबली इफ पॉसिबल. अब आपको एक और चीज याद रखनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल 3, कि जो भी डिग्री पास हो रही है और जो भी कॉम्प्रोमाइज का सब्जेक्ट मैटर है, वो जरूरी नहीं हो कि वो सूट का भी सब्जेक्ट मैटर हो. कॉम्प्रोमाइज सूट के सब्जेक्ट मैटर से भी कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है. देखिए, जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है वो ये हुआ है, वेदर और नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन इज द सेम एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट. सो इट डजंट मैटर कि सब्जेक्ट मैटर सूट और कॉम्प्रोमाइज का सेम है या नहीं है, या उससे और ज्यादा है. इट डजंट मैटर. अगर पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज एंटर कर लिया, सो दैट इज इट. All that is required कि the parties to the suit should enter into a compromise and the compromise should be lawful. ठीक है, and they should write it down, it should be in written form and it should be signed by the parties. ठीक है, बेसिकली ये बेयर एक्ट तक ही अभी हम लोग सीमित हैं. अभी हम लोग कंसेप्ट में जाएंगे. तो दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत आती है कि when one of the parties wants to get a decree passed इन अकॉर्डेंस विद द कॉम्प्रोमाइज, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज डिक्री कहते हैं, तो ऐसी डिक्री को जब सेट असाइड करने की बात होती है. अब एक चीज याद रखिएगा, रूल 3 आपको बताएगा कि नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड द डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल. ठीक है, रूल 3 कहता है कि आप सूट नहीं ला सकते इस बात पे, तो देयर इज अ बार टू द सूट. अब सेक्शन 96 का सब सेक्शन 3 कहता है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज. मतलब कॉम्प्रोमाइज डिक्री से अपील भी नहीं लाया करती. तो दिक्कत ये आती है कि लेट अस सपोज यू वांट टू गेट अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री सेट असाइड और रिकॉल्ड, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, वैसे सेट असाइड इज द प्रॉपर एक्सप्रेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस डिक्री, नॉट द रिकॉल. ठीक है, you will always say setting aside of decree, not the recall of decree. तो इसके लिए जरा दो केसेस की मैं बात करता हूँ. पहला है बैराम पेस्तौनजी गरीवाला वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा होगा आपका बनवारी लाल वर्सेस श्रीमती चंदो देवी. ये दोनों लोकस क्लासिकस हैं इस पॉइंट पे. और अभी हम लोग वो वाला पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे कि हाउ डू यू सेट असाइड अ डिक्री पास्ड in pursuance of a compromise. How do you set aside a compromise decree? अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे. पहले ये समझिए कि what is the law with regards to the rule 3A and rule 3 and 3A under order 23. पहले आप ये जानिए कि कॉम्प्रोमाइज को लेके क्या लॉ है. ठीक है, कि कॉम्प्रोमाइज कब लॉफुल होती है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है. जब आप ये जान लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको ले जाऊंगा जहां पे कॉम्प्रोमाइज डिक्री को सेट असाइड करने का प्रोसीजर समझाऊंगा. क्योंकि याद रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे
कॉम्प्रोमाइज डिग्री को सेट असाइड करने के लिए आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते क्योंकि रूल 3A बार कर रहा है। आप अपील पे नहीं जा सकते क्योंकि सेक्शन 96 का सबसेक्शन 3 बार कर रहा है। तो रेमेडी क्या होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये समझिए कि लॉ क्या है, इसको लेके कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले हम आते हैं उस केस पे जो है बैराम पस्तोंजी गरीवाला वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको याद होगा ऑर्डर 3 जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने प्लीडर की इम्प्लाइड पावर्स की बात की थी और मैंने बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 23 समझने के लिए। और ऑर्डर 23 के कंटेक्स्ट में मैं जब स्पेसिफिकली बात कर रहा था इम्प्लाइड पावर की तो मैं कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट्स को लेके बात कर रहा था। उसी कंसेप्ट को आपको इधर लगाना है। बायराम पेस्तोंजी गरीवाला में ये सवाल का आंसर दिया गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है कि इट शुड बी साइंड बाय द पार्टीज, क्या इसके अंदर प्लीडर साइन कर सकता है या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये आता है एग्जाम में, ठीक है, डीजीएस वीजीएस टाइप में ये आता है। और आपको जनरली इसको लेके अवेयर भी होना चाहिए कि पार्टीज की जगह क्या प्लीडर साइन कर सकता है कॉम्प्रोमाइज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वो क्वेश्चन आंसर किया था। Supreme Court said that there is no reason to assume that legislature intended to curtail the implied authority of the council engaged in the thick of proceedings in court to compromise or agree on the matters relating to the parties, even if such matters exceed the subject matter of the suit. The relationship of the council and his party or the recognized agent and his principal is a matter of contract, and with the freedom of contract, generally the legislature does not interfere except when warranted by the public policy and the legislative intent is expressly made manifest. There is no such declaration of the policy or indication of intent in the present case. The legislature has not evinced any intention to change the well recognized and universally acclaimed common law tradition of an ever alert, independent, and active bar with the freedom to maneuver with force and drive for quick action in a battle of wits typical of adversarial system of oral hearing, which is in sharp contrast to the inquisitorial traditions of civil law of France and other European and Latin American countries, where written submissions have the pride of place and oral arguments are considered relatively insignificant. We may, however, hasten to add that it would be prudent for the council not to act on the implied authority except when warranted by the exigency of circumstances demanding immediate adjustment of the suit by agreement or compromise, and the signature of the party cannot be obtained without undue delay. मतलब कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि yes, the pleader or the counsel acting under his implied authority can sign on the behalf of the party. लेकिन फिर कोर्ट एक राइडर पुट करता है कि एक एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस काउंसिल को कंसल्ट कर लेना चाहिए और तब तक ये पावर नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए जब तक ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना हो जहां पे उसको अर्जेंटली ये पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए इन द फेवर ऑफ हिज क्लाइंट. Supreme Court further said, in these days of easier and quicker communications, such contingency may seldom arise. A wise and careful counsel will no doubt arm himself in advance with necessary authority expressed in writing to meet all such contingencies in order that neither his authority nor his integrity is doubted. This essential precaution will safeguard the personal reputation of the counsel as well as uphold the prestige and dignity of the legal profession. Considering the traditionally recognized role of the counsel in common law system and the evils sought to be remedied by the parliament, namely attainment of certainty and expeditious disposal of cases by reducing the terms of compromise to writing signed by the parties and allowing the compromise decree to comprehend even the matters falling outside the subject matter of the suit but relating to the parties, the legislature cannot, in absence of the express words to such effect, be presumed to have disallowed the parties to enter into a compromise by counsel in their cause or by their duly authorized agents. Any such presumption would be inconsistent with the legislative object of attaining quick reduction of arrears in court by elimination of uncertainties and enlargement of the scope of compromise. तो बेसिकली कोर्ट ने दोनों पोजीशन रिकॉग्नाइज की है कि एक काउंसिल के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है और उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स भी, पार्टीज के ऑथराइज्ड एजेंट्स भी
पार्टीज के बिहाफ पे कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर सकते हैं। लेजिस्लेचर ने कहीं भी बार नहीं किया है, और अगर बार करना होता तो लेजिस्लेचर एक्सप्रेसली लिखता। तो इसीलिए कोर्ट काउंसिल्स की इंप्लाइड अथॉरिटी पे आपको ले गया था। Furthermore, Supreme Court goes on and says that to insist upon the party himself personally signing the agreement or compromise would often cause undue delay, loss, and inconvenience, especially in the case of non-resident persons. It has always been universally understood that the party can always act by his duly authorized representative. If power of attorney holder can enter into agreement or compromise on behalf of his principal, so can the counsel possessed of the requisite authorization by wakalatnama to act on behalf of his client. To not to recognize such a capacity is not only to cause much inconvenience and loss to the parties personally, but also to delay the progress of the proceedings in the court. If the legislature has intended to make such a fundamental change, even at the risk of delay, inconvenience, and a needless expenditure, it would have expressly so stated. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, कि प्लीडर कैन आल्सो एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, ऑथराइज्ड एजेंट्स कैन आल्सो एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। प्लीडर कैसे कर सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक सजेशन कोर्ट ने ये दिया है कि एक बार एक्सप्रेसली ये चीज़ रिकॉर्डेड कर लें अगर आप चाहें तो एज अ प्लीडर, जिससे आपकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल ना उठा सके, और यूजुअली अपने क्लाइंट से कंसल्ट करके ही कॉम्प्रोमाइज में एंटर करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि प्लीडर्स के पास, काउंसिल्स के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है टू एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। ठीक, तो ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली आंसर किया था इन बायराम पेस्तोंजी गरीवाला वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज डिसाइडेड ऑन 20 सितंबर 1991। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार टू द सूट को लेके क्या पोजीशन बताई है। इस पे अथॉरिटी है बनवारी लाल वर्सेस श्रीमती चंदो देवी, डिसाइडेड ऑन 11 सितंबर 1992। इट सेड एंड कंपेयर्ड द प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने पहले रूल 3A देखा और फिर बताया कि ऑर्डर 43 में पहले रूल 1M हुआ करता था, जिसकी वजह से एन अपील वाज मेंटेनेबल अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर रूल 3 ऑफ ऑर्डर 23, रिकॉर्डिंग और रिफ्यूजिंग टू रिकॉर्ड एन एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन। बट आफ्टर द अमेंडिंग एक्ट द सेट क्लॉज वाज डिलीटेड। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 43 के रूल 1A को गौर किया। ऑर्डर 43 का रूल 1A कहता है कि राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स इन एन अपील अगेंस्ट डिक्रीज। It says where any order is made under this code against a party and thereupon any judgment is pronounced against such party and a decree is drawn up, such party may in an appeal against the decree contend that such order should not have been made and the judgment should not have been pronounced. Subrule 2 reads, in an appeal against the decree passed in a suit after recording a compromise or refusing to record a compromise, it shall be open to the appellant to contest the decree on the ground that the compromise should और शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। अब सिचुएशन ये है कि सेक्शन 96 का सब सेक्शन 3 says that no appeal shall lie from a decree passed by the court with the consent of the parties। तो सवाल उठता है कि ये जो रूल 1A है और सेक्शन 96 का सब सेक्शन 3 है, इसको हम लोग बैलेंस कैसे करें? एक तरफ बोल रहा है कि भाई अपील नहीं हो सकती, दूसरी जगह 1A का सब रूल 2 अलाउज इट। रूल 1A में लिखा है, इन अपील अगेंस्ट द डिक्री पास इन अ सूट आफ्टर रिकॉर्डिंग अ कॉम्प्रोमाइज और रिफ्यूजिंग टू रिकॉर्ड अ कॉम्प्रोमाइज, इट शैल बी ओपन टू द अपीलेंट टू कंटेस्ट द डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज शुड और शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। तो सवाल ये उठता है कि भाई अपील करेंगे कैसे? 96 का सब सेक्शन 3 तो बोलता है कि आप अपील कर ही नहीं सकते। हाउ वुड यू गो ऑन अपील? तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली स्कोप बताया कि सेक्शन 96 के सब सेक्शन 3 का स्कोप क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आफ्टर कंपेयरिंग दीज प्रोविजंस, it said that when section 96 subsection 3 bars an appeal against a decree passed with the consent of the parties, it implies that the decree is valid and binding on the parties unless set aside by the procedure prescribed or available to the parties। मतलब 96 का subsection 3 उस situation की बात कर रहा है जहां पे वो assume करके चल रहा है कि the compromise is valid and the factum of the compromise is not denied। Then Supreme Court said
that after comparing the amendments which have been introduced, neither an appeal against the order recording the compromise nor the remedy by the way of filing the suit is available in cases covered by Rule 3 of Order 23. As such, the right has been given under Rule 1A sub rule 2 of Order 43 to a party who challenges the recording of the compromise to question the validity thereof while preferring an appeal against the decree. Section 96 subsection 3 of CPC shall not be a bar to such an appeal, because section 96 subsection 3 is applicable to cases where factum of compromise or agreement is not in dispute. मतलब अगर factum of compromise is in dispute तो section 96 का subsection 3 नहीं apply करेगा. तो आप अपील कब कर सकते हैं? When the factum of compromise is in dispute, then you will file an appeal under section 96 subsection 1 read with order 43 rule 1A sub rule 2. ठीक है, इस बात पे अपील फाइल होगी. तो वहां पे आपकी अपील को सेक्शन 96 का सब रूल 3 बार नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 96 का सब सेक्शन 3 तब अप्लाई होता है when the factum of compromise or agreement is not in dispute. अगर factum of compromise or agreement is in dispute तो सेक्शन 96 का सबसेक्शन 3 अप्लाई करेगा ही नहीं. ठीक है, वो अप्लाई करेगा ही नहीं. तो आप अपील कहां फाइल करेंगे? सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 read with what? Read with rule 1A sub rule 2 of order 43. I hope I made myself clear. Now Supreme Court compared more provisions and said that the amending act introduced a proviso along with an explanation to rule 3 of order 23, saying that where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the court shall decide the question. The court before which a petition of compromise is filed and which has recorded such compromise has to decide such question whether an adjustment or satisfaction had been arrived at on the basis of lawful agreement. To make an inquiry in respect of the validity of the agreement or the compromise more comprehensive, the explanation of the proviso says that the agreement or compromise which is void or voidable under Indian Contract Act shall not be deemed to be lawful within the meaning of the said rule. In view of the proviso read with the explanation, a court which had entertained a petition of compromise has to examine whether the compromise was void or voidable under Indian Contract Act. As such, a party challenging a compromise can file a petition under proviso to Rule 3 of Order 23 or appeal under Section 96(1) of CPC, in which he can now question the validity of the compromise in the view of Rule 1A of Order 43 of CPC. Further, the Supreme Court said that the application for exercise of power under the proviso to Rule 3 of Order 23 can be labeled under Section 151 of the Code, but where the amending act specifically said that such power has been vested in the court before which the petition of compromise has been filed, the power in appropriate cases has to be exercised under the said proviso to Rule 3. मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि कॉम्प्रोमाइज फ्रॉडुलेंट थी और डिग्री पास हो गई है, तो 151 भी एक्सरसाइज किया जा सकता है टू रिकॉल सच डिग्री, लेकिन ये कोर्ट ने बोला एक्सेप्शनल केसेस में होगा. Supreme Court has approved the view of the different high courts that even after compromise has been recorded, the court concerned can entertain an application under section 151 of CPC questioning the legality and the validity of the compromise. Then the Supreme Court gave reference to those cases where it was held that the application under section 151 of CPC is maintainable, and said that the court before which it is alleged that one of the parties to the alleged compromise, that no such compromise has been entered between the parties, that the court has to decide whether the agreement or compromise in question was lawful or not, void or voidable under Indian Contract Act. If agreement or compromise itself is fraudulent, then it shall be deemed to be void within the meaning of the explanation to the proviso to Rule 3, and as such not lawful. Hence the application in these scenarios under 151 would be maintainable. तो बेसिकली ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताता है कि कहाँ कहाँ
क्या हो सकता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में है, अगर इफ यू आर नॉट यूज्ड टू द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ना, तो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसको समझना कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बोला क्या। सो लेट मी समराइज द पोजीशन फॉर यू। पहली चीज याद रखिए कि अपील जो फाइल हो सकती है वो फाइल हो सकती है विद सेक्शन 96 रेड विद ऑर्डर 43 रूल 1A सब रूल 2, ठीक है। और कब फाइल हो सकती है? व्हेन द फैक्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज इन डिस्प्यूट, ठीक, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन इज no appeal would be maintainable from the decree passed by the court with the consent of the parties where the factum of compromise is not in dispute। तब सेक्शन 96 का सबसेक्शन 3 प्ले में आ जाएगा, ठीक। थर्ड पोजीशन इज no suit shall lie to set aside the decree passed under rule 3 of order 23 on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful in the view of the bar contained in rule 3 of order 23, ठीक है। Fourth position is if the aggrieved party was the party to the suit, the only remedy available to him against the decree passed by the court on the basis of compromise between the parties would be to file an application under the proviso to rule 3 of order 23 disputing such compromise। मतलब उसी कोर्ट के पास जाएं जिसने डिक्री पास की है, ठीक है, उसी को बताएं, उसी कोर्ट को बताएं कि द कॉम्प्रोमाइज इज नॉट लॉफुल, ठीक है। सो दिस इज योर प्राइमरी रेमेडी। अगर आप अग्रीड पार्टी हैं एंड यू से द कॉम्प्रोमाइज इज नॉट लॉफुल और जिस पे वो डिक्री पास हुई है दैट इज नॉट लॉफुल, then you go to the court which has passed such compromise decree and tell him to decide such dispute, ठीक है। Then when there is any dispute raised by either of the parties to the suit on the question whether there was a compromise or not, a decree accepting the compromise on the resolution of the controversy cannot be said to be a decree passed with the consent of the parties। Therefore the bar under section 96 subsection 3 of CPC would have no application। Section 96 subsection 3 is applicable to cases where the factum of compromise or agreement is not in dispute। अगर factum of compromise or agreement is in dispute तो section 96 का subsection 3 would not be applicable, ठीक है। Then the position is if the agreed party was not the party to the suit, the remedy available to him to challenge the decree passed by the court on the basis of compromise between the parties to the suit, that is the consent decree, would be to file an appeal under section 96(1) of CPC with the leave of the appellate court or to file a review application before the court which passed the decree as may be permissible under section 114 read with order 47 of CPC। ये उस सिचुएशन की बात हो रही है जब अग्रीड पार्टी वाज नॉट द पार्टी टू द सूट। अब ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है, ये भी पोजीशन है। And finally, the word signed by the parties as occur in order 23 rule 3 would include a compromise duly signed by authorized pleaders or the power of attorney holders or the recognized agents of the party concerned। तो ये थी summarization of position under your order 23 rule 3, ठीक है, compromise suits और compromise decrees को लेके कि क्या लॉ है प्रॉपरली। हाँ, एक चीज रह गई कि एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 वुड आल्सो बी मेंटेनेबल इन रेयर केसेस, इन रेयर सिनेरियोज। अब एक चीज याद रखिएगा, अ डिक्री पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वुड हैव द बाइंडिंग फोर्स ऑफ एस्टॉपल, ठीक है। इफ द कॉम्प्रोमाइज इज नॉट विशिएटेड बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक एसेट्रा, then it would be an effective estoppel between the parties। तो ये बात याद रखिएगा। Always remember, compromise decrees creates an estoppel by judgment and a judgment by consent is as effective as an estoppel between the parties as a judgment whereby the court exercises its mind on a contested case। इसका सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सप्रेशन यूज किया है पर वो एकेडमिकली करेक्ट नहीं होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट
लेकिन कई लोग इस एक्सप्रेशन को मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं. मैं एक्सप्रेशन बताता हूं कि सच डिक्री वुड हैव द बाइंडिंग इफेक्ट और फोर्स ऑफ रेस जुडिकाटा. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट वहां ये कहना चाह रहा था इसका प्रभाव वैसा ही होगा जैसा कि मान लीजिए रेस जुडिकाटा होता, पर वो ये नहीं कह रहा इट वुड बी हिड बाय रेस जुडिकाटा, क्योंकि रेस जुडिकाटा में कोर्ट को इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना होता है एंड द मैटर मस्ट बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. वो कॉम्प्रोमाइज पे नहीं बेस होता, तो वो तो रेस जुडिकाटा होता है. सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि इट शुड हैव द फोर्स ऑफ रेस जुडिकाटा, इट हैज द फोर्स ऑफ रेस जुडिकाटा. तो ये एक्सप्रेशन कभी भी जजमेंट में पढ़िएगा तो उसके प्रॉपर कंटेक्स्ट में पढ़िएगा. ठीक है, कई जगह एक्सप्रेशन यूज किया गया है. नाउ लेट मी गिव यू एन इलस्ट्रेशन कि कहाँ यूज किया गया है. जैसे कि एक केस है शंकर सीताराम वर्सेस बालकृष्ण सीताराम, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 352. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा it is well settled that a consent decree is as binding upon the parties thereto as a decree passed by in vitam, the compromise having been found not to be vitiated by fraud, misrepresentation, misunderstanding or mistake, the decree passed thereon has a binding force of res judicata. Basically the Supreme Court was trying to say that it has the effect of res judicata but it is not hit by res judicata. So basically Supreme Court wanted to say that it is no less efficacious देन रेस जुडिकाटा, बट इट इज नॉट एक्चुअली रेस जुडिकाटा. ठीक है, रेस जुडिकाटा एक्चुअली में नहीं होगा. इसको प्रॉपरली कहा जाता है कि ये बाइंड करता है बाय वे ऑफ एन एस्टॉपल. तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री में भी अगर जो डिक्री पास की गई है इट वुड बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, और वो उसी तरीके का इफेक्ट रखेगी जैसे कि मान लीजिए रेस जुडिकाटा का होता. ठीक है, पर इन एक्चुअलिटी इट इज नॉट रेस जुडिकाटा, इट हैज अ सेम्बलेंस ऑफ इफेक्ट. एस्टॉपल का मेन इफेक्ट होता है. तो अगर एकेडमिकली करेक्ट रहना है, आपको लीगल प्योरिटन रहना है, तो इस बात को अच्छे से ये करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री का जो इफेक्ट होता है दैट इज प्रॉपरली द इफेक्ट ऑफ एन एस्टॉपल बिटवीन द पार्टीज. इट इज नॉट द प्योर रूल ऑफ रेस जुडिकाटा. एंड सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ Bayram Pestonji versus Union Bank of India actually also said one more thing after quoting Spencer's, Bauer and Turner and res judicata, that any judgment or order which in other respects answers the description of res judicata is nonetheless so because it was made in pursuance of consent and agreement of the parties. Accordingly, judgment orders and awards by consent have always been held to be no less efficacious as estoppels than other judgments, order or decisions, though doubts has been occasionally expressed whether strictly the foundation of estoppel in such case is not represented by conduct rather than res judicata. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का. It is as good as res judicata but not legally pure as res judicata. एस्टॉपल का इफेक्ट होता है प्रॉपरली. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने एक्सप्रेशंस में यही बता रहा है कि ये उतना ही अच्छा होगा और उतना ही बाइंड करेगा जितना कि रेस जुडिकाटा का करता. बट प्रॉपर एक्सप्रेशन है एस्टॉपल. कभी भी प्रॉपरली पूछा जाए ना आपको इंटरव्यू में कि whether the compromise decree is binding because of the rule of estoppel or because of the rule of res judicata, then the answer is it is binding because of the rule of estoppel between the parties, not per se because of the rule of res judicata, but it is as good as the rule of res judicata. ऐसी situations में you are acting as a legal puritan. और अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा ना बातों बातों में, क्योंकि इंटरव्यू में और अक्सर डिबेट्स में लोगों को फंसाने की कोशिश होती है in order to get an upper hand over them, तो ऐसी सिचुएशन में you have to remain as a legal puritan. ठीक है, तो ऐसे में आप फंसेंगे नहीं. और अगर आपको कोई पूछे कि रेस जुडिकाटा क्यों नहीं लगता, तो उसका सीधा रीजन ये है कि इट इज नॉट इन एक्चुअलिटी द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इट इज जस्ट द सील ऑफ द कोर्ट ऑन द कॉम्प्रोमाइज और द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज. तो वो एस्टॉपल के लिए तो ठीक होगा, लेकिन रेस जुडिकाटा का जो प्योर प्रिंसिपल है उस पर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि देयर द मैटर हैज टू बी heard and finally decided by the court itself, not by the parties. ठीक है, so always keep this difference in mind कि कोई भी पूछे कि क्यों नहीं होगा तो उसके लिए भी आंसर तैयार रखिएगा कि रेस जुडिकाटा क्यों नहीं है. हमेशा इस बात पे फोकस करिएगा it was not heard by the court itself and not finally decided by the court itself, जो कि कोर्ट को खुद करना था. तो जो क्योंकि उसने खुद नहीं किया है इसलिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल उसके प्योर एस्पेक्ट्स पे नहीं अप्लाई कर रहा. बट एस्टॉपल के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टॉपल का
इफेक्ट जरूर लगेगा पार्टीज पे, और डिक्री उतनी ही अच्छी होगी और उतनी बाइंडिंग होगी हैड द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ठीक है. अब एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री का एक इशू जाता है रजिस्ट्रेशन वाले मैटर्स में, तो उसको भी मैं जरा पोजीशन समराइज कर लेता हूँ बाय द वे ऑफ द जजमेंट ऑफ मोहम्मद यूसुफ वर्सेस राजकुमार डिसाइडेड ऑन 5 फरवरी 2020. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लीगल पोजीशन समराइज कर दी थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल ये था कि क्या कॉम्प्रोमाइज डिक्री रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन और नॉट. तो लीगल पोजीशन with regard to the registration of compromise decree is this, that compromise decree, if it is bona fide in the sense that the compromise is not a device to obviate payment of stamp duty and frustrate the law relating to registration, then it would not require registration. In converse situation, it would require registration. मतलब जहाँ पे compromise decree अगर bona fide नहीं होगी या compromise decree इसीलिए पास हुई है because parties intend to bypass the payment of stamp duty and frustrate the law of registration, तब तो registration require करेंगे. लेकिन अगर compromise decree bona fide है या honestly पास हुई है, honestly parties ने compromise में enter किया है, then in that situation it would not require the registration. ठीक है. Now this is a question of fact whether the compromise decree is bona fide or not. Second principle is, if the compromise decree were to create for the first time right, title or interest in immovable property of the value of rupees 100 rupees or upwards in favor of any party to the suit, the decree or order would require registration. अगर पहली बार compromise decree ही कोई right, title और interest create कर रही है किसी immovable property में और उस immovable property की value 100 रुपए या उसके ऊपर है, तो ऐसी situation में क्या होगा? Registration is mandatory. Next principle is, if the decree does not attract the clauses of subsection 1 of section 17, मान लीजिए कि 100 रुपए के नीचे का मैटर है एक्सेट्रा, तब वो रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर करेगी, या सेक्शन 17 के अगर किसी भी पॉइंट से हिट नहीं करती है तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर करेगी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. एक बार उसको देख लीजिएगा अगर मन करे तो. फिर द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, इफ द डिक्री, the compromise decree does not embody the terms of compromise, then the benefit of the terms of compromise cannot be derived even if the suit were disposed of because of the compromise in question. ये registration of the suits के context में बात कर, sorry, registration of the compromise decree के context में बात कर रहा हूँ. And finally, if the property dealt with by the compromise decree is not exactly the subject matter of the suit or proceeding, तभी it would require registration. ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं the compromise need not be confined to the actual subject matter of the suit, it can even go beyond it. तो अगर वो beyond जाता है, compromise goes beyond the subject matter of the suit and then the court passes the decree on that matter, तब registration required है. क्योंकि अगर आप देखिए सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखेंगे और सीधे उसका सबसेक्शन 2 का क्लॉज 6 देखेंगे तो वो बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो सबसेक्शन 2 के क्लॉज 6 में बताया गया है कि एनी डिक्री और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर expressed to be made on the compromise and comprising immovable property other than that which is the subject matter of the suit or proceeding. तो ये तो एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, इसलिए ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिकॉग्नाइज किया था कि जनरली कोई डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन. लेकिन अगर डिक्री कॉम्प्रोमाइज डिक्री है और कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अंदर एक ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में राइट टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है which is not the subject matter of the suit or proceeding, then it would require registration. ठीक है. तो ये देखिए एक्सप्रेशन क्या यूज हुआ है सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 में एक्सप्रेशन यूज किया गया है, एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज एंड कंप्राइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दैट विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और द प्रोसीडिंग.
इसी के कंटेक्स्ट में सोमदेव एंड अदर्स वर्सेस रतिराम के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने वाइल एक्सप्लेनिंग सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 एंड सेक्शन 17 subsection 1 b and c held that all decrees and orders of the court including compromise decree subject to the exception as referred that the properties that are outside the subject matter of the suit do not require registration. अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से लिखा है कि अगर मान लीजिए आदमी थोड़ा ऊपरी निगाह से पढ़े तो गलत कंक्लूजन बना के बैठ जाए. बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस केस कि सिंपल भाषा में बताता हूं कि जनरली कोर्ट का कोई भी ऑर्डर या डिक्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं करती, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री ही क्यों ना हो. इट डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट टू दैट एक्सटेंट जब कॉम्प्रोमाइज डिक्री में वो प्रॉपर्टीज या वो सब्जेक्ट मैटर भी इंक्लूड किया गया है दैट इज आउटसाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. ठीक है. Even a decree on a compromise does not require registration if it does not take into the property that is not the subject matter of the suit. ठीक. सो ये आपका रजिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में भी एक इशू डेल्ट विद हो गया. अब देखिए जो बाकी के पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए स्टडी नोट्स और केस मटेरियल में रख रखे हैं वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़े एडवांस पॉइंट्स हैं. तो आपका मन करे तो उनको पढ़ लीजिएगा, अगर आपका मन नहीं है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन ये है इफ़ यू वांट टू नो मोर, इफ़ यू वांट टू नो सम मोर इलस्ट्रेशंस तो मैंने आपके लिए वो रख रखे हैं. आई डोंट वांट टू अननेसेसरली प्रोलॉन्ग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑर्डर 23, रूल 3 and 3A. Finally, there is rule 3B which talks about that no agreement or compromise will be entered into a representative suit without the leave of the court. और अगर compromise और agreement में enter किए without the leave of the court तो वो क्या होगी, वो void होगी. तो प्रॉपरली प्रोसीजर क्या है कि इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट यू हैव टू अप्लाई फॉर द कोर्ट फॉर इट्स लीव एंड द कोर्ट मस्ट ग्रांट दैट लीव एक्सप्रेसली. ठीक है. लेकिन उस लीव को ग्रांट करने से पहले द कोर्ट शैल गिव नोटिस टू ऑल द पर्सन्स और पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द सूट. अब रिप्रेजेंटेटिव सूट की कैटेगरी में अंडर रूल 3B क्या क्या आ जाता है आपका सेक्शन 91, 92, ऑर्डर 8 रूल, ऑर्डर 1 रूल 8. देन योर सूट इन विच द मैनेजर ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली sues or is sued as representing the other members of the family. या कोई भी दूसरा ऐसा सूट by the virtue of which if a decree is passed in that suit it would also bind any persons who are not named as a party in that suit. ठीक है. तो बेसिकली आपको सिंपल प्रिंसिपल याद रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट यू कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंड इफ यू डू द रिजल्ट इज दैट सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इज वॉइड. ठीक है. सो दिस इज द लॉ रिलेटिंग टू योर ऑर्डर 23. सो ऑन द बेसिक इंटरमीडिएट लेवल यू हैव डेल्ट विद ऑल ऑफ द सिचुएशंस दैट मे अराइज. ठीक है. कॉम्प्रोमाइज सूट्स को लेके मैंने आपको थोड़ी एडवांस पोजीशन भी बता दी. So just focus on understanding all of these things. If you do, then very good. If you don't and have some doubts or confusions, that you may ask me. Okay? So that is all for today. I would see you tomorrow.